are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our sixth chapter of class third, which is about the states of India. So, as students, we all know that India is a vast country. It comprises of many states along with the union territories. So, today we have to discuss about those states only. Okay, chalo. So, let's start our chapter with some introduction about India. We live in India. It is our motherland. India is a vast country. It is the seventh largest country of the world. It has a democratic government. Democracy means the government of the people, by the people, and for the people. The central government looks after the affairs of the country. Our country is divided into small parts. These parts are called the states. The state government governs these states. Some parts which are governed by the central government are called the union territories. New Delhi is the capital of our country. So, student, they have given some introduction about India, that we live in India. India is our motherland. Okay. So, India क्या है, एक बहुत बड़ी country है, seventh largest country. पूरे world में seventh number पे जो largest country है, that is India only. It has a democratic government, means the type of government which is there in India, it is for the people, of the people, and by the people. द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट होती है. एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो कंट्री के जितने भी अफेयर्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उन सभी को क्या करती है, लुक करती है. ओके. देन आर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी कंट्री डिवाइडेड है, और उन छोटे पार्ट्स को हम स्टेट्स कहते हैं. और हर एक स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी अफेयर्स होंगे उनको कंट्रोल करेगी, उनको गवर्न करेगी. उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट्स हमारे कंट्री के जिनको गवर्न करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, एंड दोज पार्ट्स आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज. ओके. देन द कैपिटल ऑफ अ कंट्री इज न्यू दिल्ली. ओके. Next is states of India. So now we will come to the topic, which is states of India. The map of India shows the states and union territory. There are 29 states and 8 union territories in India. Every state also has a capital city. Every state has a state government, which is headed by the chief minister. The chief minister has a council of ministers who govern the state. So this is the map of country, students. ठीक है, ये क्या है, कंट्री का, हमारी इंडियन कंट्री का मैप है, और इस मैप के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सभी रिप्रेजेंटेटेड है. ठीक है, कितने, अराउंड 29 states and 8 union territories are there. Now it's 28, not 29. Okay, wait. It's not 29 now, it's 28 states and 8 union territories. Okay, चलो. उसके बाद हर एक स्टेट की क्या है, एक अपनी कैपिटल है. हमारी कंट्री में कितने, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर, एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी. ठीक है, हर एक स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसको कौन, चीफ मिनिस्टर कौन करता है, कंट्रोल करता है. चीफ मिनिस्टर का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है. ठीक है, जो पूरे स्टेट को गवर्न करेगा, उसको रेगुलेट करेगा. Now the states of India are given below with their capital. So they have given all the states of our country. ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके कैपिटल के साथ they have given to us. See, number 1 आंध्र प्रदेश. ठीक है, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद. Then अरुणाचल प्रदेश, of which capital is ईटानगर. फिर असम, जिसकी कैपिटल है दिसपुर. बिहार, capital is Patna. Other state is Chhattisgarh. Capital is Raipur. Then Goa. Goa की है पणजी. गुजरात. गुजरात की capital गांधीनगर. Then हरियाणा. हरियाणा की capital चंडीगढ़. Then हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की capital is शिमला. Okay. Next is झारखंड. झारखंड की capital है रांची. देन कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु. केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम. मध्य प्रदेश की कैपिटल इज भोपाल. महाराष्ट्र की मुंबई. मणिपुर की इम्फाल. मेघालय की शिलोंग. मिजोरम की एजवाल. नागालैंड की कोहिमा. ओके, चलो. नेक्स्ट इज उड़ीसा. उड़ीसा की कैपिटल इज भुवनेश्वर. पंजाब की कैपिटल इज चंडीगढ़. राजस्थान की कैपिटल इज जयपुर. सिक्किम की कैपिटल इज गैंगटॉक. तमिलनाडु की कैपिटल इज चेन्नई. त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला. उत्तराखंड की कैपिटल इज देहरादून. एंड उत्तर प्रदेश कैपिटल इज लखनऊ. Okay, and then West Bengal is having the capital Kolkata, and Telangana is having the capital of Hyderabad. So these are what, 28 states along with their
capitals. Now we come to the union territories, the 8 union territories of our country. Number 1 is Andaman and Nicobar Island, and its capital is Port Blair. Next is Chandigarh, Chandigarh के capital Chandigarh ही है. Then Dadra and Nagar Haveli, इसकी capital है Silvassa. Daman and Diu, capital is Daman. दिल्ली की कैपिटल इज दिल्ली. लक्षद्वीप की कैपिटल इज कावरती. पौंडीचेरी की कैपिटल इज पौंडीचेरी ओनली. और लद्दाख की कैपिटल है ले. Okay, so we have discussed all the 8 union territories, all the 28 states along with their respective capital, and this you have to learn. Now, the government at the central level is for the central government and the government at the state level is called the state government. वो government जो central level पर को govern करती है उसको central government कहा जाता है, और वो government जो state level पर होती है उसको state government कहा जाता है. So first of all, we have to discuss about central government. The offices of central government are in New Delhi, which is the capital of India. Okay, जो central government का office है वो कहाँ है? New Delhi में है. New Delhi क्या है? हमारी country की capital है. Okay, President, Prime Minister and the other minister and senior office of the central government work and live in New Delhi. जितने भी ministers है, senior ministers या senior officer central government के president, prime minister, okay, ये सभी क्या करते हैं? न्यू दिल्ली में ही ज़्यादातर काम करते हैं और वहीं रहते भी हैं. नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ईच एंड एवरी स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द स्टेट. कंट्री का हर एक स्टेट का क्या होगा? अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी जो स्टेट के पीपल को क्या करेगी? उनका ध्यान रखेगी, उनके बारे में लुक करेगी. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑन द हेड पोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट के हेड पोस्ट पे होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो उसका स्टेट का गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको. मेन ऑफिसर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं वो कहाँ होंगे? उस स्टेट की कैपिटल के अंदर होंगे. नाउ ईच स्टेट हैव यूनियन टेरिटरीज फॉर द सबडिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. फिर जाके हर एक स्टेट या फिर हर एक यूनियन टेरिटरी को और कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में सब डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए. जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर एक पर्सन होता है जो क्या करता है? उस डिस्ट्रिक्ट की नीड्स और प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करेगा. The union territories are similar to states, but they're directly looked after by the central government. The president appoints the lieutenant governor for each union territory to look after its affair. यूनियन टेरिटरीज भी सिमिलरली ही होती हैं, जैसे स्टेट होते हैं वैसी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, लेकिन इनको कौन डायरेक्टली इनको कौन गवर्न करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या एक लिeutenant गवर्नर अपॉइंट करते हैं हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए, जो उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के अफेयर्स को गवर्न करते हैं. उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, सबसे पॉपुलर स्टेट जो है हमारी कंट्री का, इंडिया का, दैट इज उत्तर प्रदेश. इसमें कितने 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर. Okay, next is union territories. Now, some parts of a country are directly under the control of the central government. These are called union territories, and there are 7 union territories in India. It's not 7, it's 8. Okay, कितनी? 8 यूनियन टेरिटरीज है. सो हमारे कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं. और हमारी कंट्री में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके बारे में भी हमने डिस्कस भी किया था. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट एंड द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. अंडमान और निकोबार आइलैंड सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है. ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. वी हैव डिस्कस्ड about the states and the different union territories of our country. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everybody.